As we are in the series that we are learning from the Word of God, और जैसे हम वो श्रृंखला में हैं जो हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, we are going to continue what we have been seeing in the past weeks. और हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे जो हम पिछले हफ्तों से सीखे आ रहे हैं. Where we had left off, we had seen that God had cast Lucifer in the pit. और हमने जहाँ पर छोड़ा था हमने आपको बताया था कि परमेश्वर ने लूसीफर को नरक में डाल दिया. What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? After that, what happened is what you have in Genesis chapter 1 verse 2. और उसके बाद वो हुआ जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 और दूसरे वचन में है. And this is what takes the history back to 6,000 years ago. और ये इतिहास दोहरा रहा है, आपको पीछे ले जाता है 6,000 साल पहले. So once we have understood what happened billions of years ago, और जब एक बार हम समझ गए हैं कि अरबों साल पहले क्या हुआ था, and for the longest Lucifer was in the pit, और बहुत समय तक लूसीफर नरक में रहा, but the result of what he had done before God, और उसका परिणाम वो हुआ जो उसने किया था परमेश्वर की दृष्टि में ये हुआ, it had brought a separation between God and the earth. और परमेश्वर के समक्ष से ये धरती परे हो गई थी. Because God had turned the earth upside down and made it without form. परमेश्वर ने इस धरती को उलट पुलट कर दिया था और ये धरती सुनसान हो गई थी. But we see here लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं in Genesis 1 verse 2, और उत्पत्ति की पुस्तक 1 वचन दूसरे में, on that earth which was without form, God restored it. और वो धरती जो सुनसान हो गई थी परमेश्वर ने उसे दोबारा बसाया. Once he had finished with making the light, morning, the night, the grass, the birds, and all that existed. और एक बार जब उन्होंने दिन बनाए, उजियाला बनाया, और जो पक्षी हम देखते हैं, हर एक चीज जो उसने धरती पर रची जब उसने बनाया, Then God made the beast on the earth. और तब परमेश्वर ने जानवर भी बनाए धरती, And he made all kinds of cattle. हर तरीके की भेड़ बकरियां He बनाई, made everything that creeps on earth. और हर एक चीज जो रेंगती है धरती पर उसने बनाया. And everything once again was lively and it looked good. और एक बार फिर से हर एक चीज जीवित हो गई थी और अच्छा लग रहा But था. this time God made a decision. लेकिन इस बार परमेश्वर ने ये फैसला किया The था. Bible says in Genesis chapter 1 verse 26, और बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक 1 वचन 26 में, He made a decision, now let us make man in our image, after our likeness. और उसने ये फैसला कर लिया था कि अब जो है इंसान को वो अपने रूप में बनाएगा. And God had made a decision और परमेश्वर ने ये फैसला किया था to make man in their image. इंसान को वो अपने ही रूप में बनाएगा. It's hard to translate exactly in Hindi, but when it says, let us make man in our image, it is not saying, let us make man in my image, or let me make man in my image. और इसको अनुवाद करना बहुत कठिन है, पर वो कह रहे हैं कि हम उन्हें अपने ही रूप में रचें. Verse 28 tells us that God decided, let us make man in our image, in our likeness. और 28 वचन कहता है कि इंसान को हमारे रूप में ही रचें. And we see here और हम यहाँ पर देखते हैं that it is not God who is alone making this decision. कि सिर्फ परमेश्वर अकेले ही नहीं है जो ये फैसला कर रहे हैं. God is not only making man in his likeness, but he's using a plural word here. और सदा से परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे रूप में रचूंगा, पर ये कह रहे हैं कि हमारे रूप में. Because there is the Father God, क्योंकि पिता परमेश्वर है, there is the Son, और पुत्र भी है, Jesus Christ, यसु मसीह है, and there is the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा है. They have been in existence from the beginning. और ये जो पहले से इस धरती की शुरुआत से है. And if some of you think that Jesus' existence came only after he was born of Mary, और सदा से आप ये सोच रहे होंगे कि यीशु तो जब दुनिया में आया जब वो मरियम के द्वारा आया. ऐसा my dear नहीं था. beloved, मेरे प्यारों, in John chapter 1 verse 1 it says, और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 1 कहता है, in the beginning was the Word.
कि शुरुआत से वचन था and the Word was with God, और वो वचन परमेश्वर के संग and the था Word is God. और वो वचन ही परमेश्वर And है। then in verse 14 it tells us और 14 वचन में कहा गया है that the Word became flesh and dwelt among us, कि वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच आकर बसा and we beheld not His glory. और हमने उसकी महिमा को नहीं पहचाना। The Word is Jesus. और वो जो वचन है वो यीशु है। And Jesus and God the Father, God Almighty, यीशु और पिता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर and the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, they are the Trinity that were always together from the beginning. और वो त्रिवेणी शुरुआत से एक साथ थी। And as we are on this subject here, और जैसे आज हम उस विषय में हैं, it says here that God made a decision to make man in their likeness. और वचन बताता है कि फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उनके रूप में इंसान को बनाया जाएगा। And so He did what He said. और जो उसने कहा वो उन्होंने किया। And He created a male. और उसने जो है आदमी को रचा। And then He made for the male a partner. और उसने उस मनुष्य के लिए एक साथी भी बनाया। And He made a female. और उसने औरत बनाई। My dear beloved, मेरे प्यारो, when God made the male and the female, और जब परमेश्वर ने पुरुष और नारी बनाई, He made them as He-man and She-man. और ऐसे ही वो उसे नारी और पुरुष बनाया। And when God made them, और जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, the Bible says, बाइबल कहती है, they called them Adam. परमेश्वर उन्हें आदम कहलाते थे। Remember this. एक बात याद They रखिए, called them Adam. उन्होंने उन्हें आदम कहलाया And they made them He-man and She-man. और नारी और पुरुष बनाया। Because when God created man, क्योंकि जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया and He made him a helpmeet, और तब उसके लिए एक साथी भी He बनाया, made them for Himself. और वो उन्होंने अपने लिए बनाया, He made them so He would have fellowship with them. और इसलिए बनाया ताकि उनके साथ वह संगति कर He सके, made them for His pleasure, और अपने आनंद के लिए उन्हें to बनाया give Him joy. ताकि वो उन्हें खुशी दे सके। So once again, God would not have to have angel bring Him worship, ताकि फिर से एक बार फरिश्ते उनके लिए आराधना ना ले आए, but He made them that they would worship Him. और इसीलिए बनाया ताकि वो उनकी आराधना करे। But not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, they would love Him. वो उन्हें प्यार भी They करे, would live for Him. उसके लिए ही जिए। And God was so glad when He made them. और परमेश्वर इतने खुश थे जब उन्हें बनाया। The Bible says बाइबल कहती है in verse 26 26 वचन में that when they made man, they gave dominion to man over the fowls of the air, the cattle, and every moving creature that creeped on the earth. फिर परमेश्वर ने कहा कि जब उन्होंने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार समानता में रचा है, तो वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों, हर एक चीज पर वो उसे अधिकार दे। And the Bible says in verse 28, और 28 वचन में बाइबल कहती God है made them and blessed them. परमेश्वर ने उन्हें बनाया और आशीष भी दी, And He said unto them, be fruitful और उन्हें ये भी कहा कि तुम फलवंत हो जाओ and multiply और आगे बढ़ते जाओ and replenish the earth और इस धरती पर छा जाओ and subdue it और उसे अपने काबू में ले लो, and have dominion over the fish of the sea, और जो मछलियां हैं समुद्र की उस पर अधिकार ले लो, the fowl of the air, आकाश के पक्षियों पर अधिकार and ले लो, every living thing that moves on it. और हर एक जीवित चीज जो रेंगती है इस धरती पर। And God said to them, और परमेश्वर ने उनसे कहा be fruitful फलवंत हो जाओ and multiply, और बढ़ते जाओ आगे, replenish the earth. और इस तरह से काबू पालो इस धरती पर। But why did He say subdue it? और ये क्यों कहा कि उस पर काबू कर लो? Why was there a need for man to subdue? क्या जरूरत थी कि वो जो इंसान है उस पर काबू पाए? Why was there a need for man to have dominion over the earth? और क्यों वो चाहता था कि इंसान जो है इस धरती पर अधिकार कर ले? Because there was Lucifer, whom God had removed from heaven and cast him on the earth. क्योंकि लूसीफर को उसने आसमान से
गिराकर धरती पर रख दिया था, because it was Lucifer क्योंकि वो लूसीफर ही था that God had removed from heaven जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से हटा दिया and था cast in the pit on this earth. और उसे नरक में इस धरती पर डाल दिया था। As we see in the Bible, in Genesis chapter 1, और हम जैसे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में देखते in हैं, verse 29, 29 वचन में देखते हैं, God said, I have given you everything. परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, He has given them the herb and the seed. और जितने भी फल थे और वृक्ष की जो भी बीज थे उसने उन्हें दिया था। He gave everything that was on earth, He gave it to Adam. और जो कुछ भी धरती पर था उसने आदम को दे दिया था। And He said, you can eat whatever you want. उसने कहा कि तुम खा सकते हो जो भी तुम चाहते हो। And He said to every beast of the earth and to every fowl of the air, और हर एक पक्षी जो आसमान में उड़ता है और हर एक जानवर जो चलता है धरती पर, उसने उससे कहा that I've given you the green herb to eat. यहाँ पर जो कुछ भी हरी चीजें हैं और जो कोई भी फल है तुम्हें देता हूँ। And the Bible says, और बाइबल कहती है in the end of Genesis chapter 1, उत्पत्ति के जो पहला अध्याय है उसके अंत में, that God saw that everything was good. परमेश्वर ने देखा कि हर चीज इतनी अच्छी है। My dear beloved, मेरे प्यारो, there is a saying that says that good things don't last forever. और एक कहावत है कि अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं रहती है। And what happened? और फिर क्या हुआ That made the good things not to last. कि जो अच्छी बातें थी वो काफी समय तक नहीं रही। Lucifer was very, very jealous seeing what God had done. और लूसीफर जो था वो जो परमेश्वर ने किया था वो देखते हुए बहुत ही जल रहा था। The first thing we saw about Lucifer was he had pride. और पहली बात हमने लूसीफर में देखी थी कि बहुत ही घमंडी था वो। Then we saw that he disobeyed. और दूसरी हमने देखी कि उसने आज्ञा को न माना। Now we see as we go on in our story that he was jealous. और अभी हम जैसे अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वो जलता है। And as he was jealous, और जैसे वो जल रहा था he could not just stand somebody else being close to God. और वो सह नहीं पा रहा था कि कोई और इतना नजदीक परमेश्वर के आ गया What है। the Bible says और बाइबल क्या कहती है? that he did. क्या किया उसने? He went where God had placed the man and woman. वो वहां पर गया जहां परमेश्वर ने वो पुरुष और स्त्री को रखा था। And where was that? और वो कहाँ था? That was in heaven? वो कहाँ था? स्वर्ग में था? No, it was on earth. नहीं, वो तो धरती पर था। It was in the Garden of Eden. वो था ईदन का बाग। And my dear beloved, और मेरे प्यारो, he went in the Garden of Eden और वो ईदन के बाग में गया because he wanted to see what's going on there. क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहाँ क्या चल रहा है। Should I say that he was inquisitive? और ये कह दूं कि हर एक चीज जानने के लिए बहुत ही उतावला था। And the Bible says और बाइबल कहती he है went in the Garden of Eden, which was such a pleasant sight. और इसी तरह से वो उस ईदन के बाग में गया जहाँ सब कुछ देखने में इतना अच्छा था। And he looked over there. और उसने वहां पर देखा He saw this young lady sitting there. और उसने देखा कि नौजवान स्त्री वहां पर बैठी And he हुई है goes to her और वो उसके पास जाता है and he tells her, और उससे कहता है what has the Lord told you not to do? कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है क्या मत करना। And God said to them और परमेश्वर ने उनसे कहा that you can eat of every tree in the garden. कि हर एक पेड़ जो बाग में है वो उसमें से आप खा सकते हो। You can enjoy whatever is in this garden. इस बाग में जो कुछ भी है उसका आनंद उठा सकते हो। And to the cattle and the beast and the creeping creatures, और भेड़ बकरियां और हर रेंगने वाले जंतु, God said परमेश्वर ने कहा that they could eat of every green herb that he had in the और garden. छोटे छोटे पेड़ में से जो कोई भी पौधे हैं वो खा सकते हैं। But God had also given an instruction, a commandment to Adam. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, सूचना दी थी And he said to him और उन्होंने उनसे कहा था that in Genesis 2 verse 16 we will see, and the Lord commanded the man saying, of every tree of the garden thou may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou wilt eat thereof thou shalt surely die. और हम उत्पत्ति की पुस्तक 2:16 में देखेंगे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि
कि तू इस बाग के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। See, when we see in chapter 1 जब हम पहला अध्याय में देखते हैं of Genesis, उत्पत्ति की, we see that verse 27 tells us God made the male and the female. और वचन 27 बताता है कि परमेश्वर नर और नारी को बनाया। But then as you go to chapter 2, लेकिन जैसे हम दूसरे अध्याय में आते हैं you see something is happening here. और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हो रहा है। There is a repetition of what happened in chapter 1, और जो अध्याय 1 में हुआ था वो यहाँ पर दोहराया गया है, but there is something distinct. लेकिन यहाँ पर एक खास बात है God has spoken this commandment to Adam. कि परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी, And after he has spoken to Adam, और जब यह आज्ञा आदम को दी गई, in verse 18 we see, और 18 वचन में हम देखते हैं and the Lord God said, कि परमेश्वर ने कहा it is not good that man should be alone. कि आदमी जो है अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे, I will make him a helpmeet. मैं उसका एक मददगार बनाऊंगा। And out of the ground from where God had formed every beast, every fowl of the air, और उस भूमि से जहाँ से परमेश्वर ने हर पशु को और हर एक रेंगने वाले जंतु को बनाया था, and he had brought them for Adam. और आदम के लिए रचाया था, After God had spoken to Adam, और जब परमेश्वर ने आदम से बात कर ली, in Genesis chapter 2 verse 18 the Bible says, और उत्पत्ति की पुस्तक 2:18 वचन में बाइबल बतलाती है, and the Lord God said, और परमेश्वर ने उनसे कहा, it is not good that man should be alone. ये अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला रहे, I will make him a helpmeet. तब मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। And then as you go on in the Bible, और जैसे फिर आगे बढ़ते हैं बाइबल in में, verse 21, 21 वचन में देखते the हैं, Lord God caused Adam to sleep a deep sleep. तब परमेश्वर ने आदम को एक घोर निद्रा में डाल दिया। See, God did not have to call the anesthetist. और बेहोश करने वाले को बुलाना ना पड़ा परमेश्वर, All he had to do was put Adam to sleep. और उसको इतना ही करना पड़ा कि घोर नींद में उसे सुला देना पड़ा। And then God took Adam's rib and made him a helpmeet. He made a woman for him. और तब परमेश्वर ने उसकी फसली निकालकर उसमें से स्त्री बनाई। And the Bible says God closed up the flesh. और फिर बाइबल बताती है कि उस मांस को परमेश्वर ने ढक दिया, And that rib that he had put in the woman, और वो फसली उन्होंने स्त्री में डाली, and he made that woman